suggest? Domain replication means whatever OUs the users are there, whatever settings are done in those particular users, they are replicated to another set of users uh, that are copied in another domain. And if in case of a failover, then load balancing can be done, or Mm-hmm. yeah, full. So yes, the system would be running if we have additional domain controller. Right. How many types of domain replication available? The method I'm talking about, how many way we have to establish the domain replication. Hmm. Intersite and intrasite. Right. So, okay, correct. In case of domain replication, let me help you to understand with the help of diagram because the domain replication is also associated with the FSMO role. The domain controller that you are trying to set up, पहला जो domain controller आप establish करते हैं by using any name, like I'm going to set up our domain with name of cloud.com. जो environment में पहला domain होगा वो root domain controller कहलाएगा, right? Or you can say Right. that PDC इसको हम बोलेंगे, parent Hmm. domain controller. The another domain that associated with same cloud.com. I'm going to create one more virtual machine, which is adc.cloud.com, right? So adc.cloud.com is directly associated with the same cloud.com. ADC is our computer name. As it is, like you want to create any kind of child domain controller. Second, additional domain controller or child domain controller you want to set up. Child dot cloud.com. So each and every domain are connected to same, like as a from parent domain controller. And the replication between these scenario, in this case, the replication happened 24/7, or you can say that live replication. और इस तरीके के replication को हम consider करते हैं as a intra-site replication, which is considered as a intra-site, जो within the organization होगा और जो सारे systems हम लगाएंगे वो सभी एक ही location पे available रहेंगे, एक ही particular branch या floor पे available रहेंगे. Second important point, if you want to set up the inter-site replication, we have another domain with name of class.com, the another company that you establish, and the class.com is also connected with the adc.class.com, and both machines are connected to each other, both the servers are connected to each other, और एक domain हमने establish किया with the name of child.class.com. So in this case, if you want to make a connection between each other, trust relationship between each other, which is considered as a, you can consider as a inter-site replication. इसको हम बोलेंगे inter-site replication. और inter-site replication के लिए you have to wait up to 180 minutes. ठीक है? This is the total duration that required to replicate the services or objects from one location to another location or from one domain to another domain. लेट्स टेक मोर एग्जांपल. अगर आपने कोई एडीसी पे यूजर बनाया, लाइक AWS का नाम का यूजर बनाया आपने, एंड ओवर अ cloud.com मींस रूट डोमेन कंट्रोलर पे आपने टाटा यूजर बनाया, सो ये यूजर आपस में सिंक्रोनाइज होने में कोई भी टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ लाइव एप्लीकेशन. इमीडिएटली जो भी आप यूजर्स बनाएंगे अपने रूट पे या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पे, वो सभी डोमेन में इमीडिएटली रेप्लिकेट कर जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आपको दोनों लोकेशन में मिलना स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई साइट है, दूसरी ब्रांच है, आप दूसरी ब्रांच लोकेशन में बनाना चाहते हैं, या दूसरा डोमेन है जो आपने कोऑर्डिनेट कर रखा है आपस में टू सेट अप आवर डोमेन एनवायरनमेंट, सो दैट टाइम इंटर साइट एप्लीकेशन कम इनटू द पिक्चर. जो भी यूजर्स आप सिंक्रोनाइज करेंगे, आपने यहाँ पे XYZ के नाम से यूजर बनाया, the same user will reflect in different location or different domain, but इसके लिए जो टाइम की ड्यूरेशन है वो लगभग 180 मिनट्स रिक्वायर्ड है मैक्सिमम टाइम की. हो सकता है 10 मिनट में भी हो जाए, 15 मिनट में भी हो जाए,
बट द मैक्सिमम टाइम है, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हमें वेट करना पड़ेगा वो लगभग 180 मिनट्स का होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. नाउ एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, अभी हम चल रहे हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यानी इंट्रासाइट एप्लीकेशन तैयार करेंगे, और इसी से जुड़ा हुआ है हमारा FSMO रोल. ठीक है. द रेप्लीकेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फिज्मो रोल. सो फिज्मो रोल क्या है, कितने तरीके के FSMO रोल्स है? The FSMO role categorized in two different parts. One is domain wide and the another is forest wide. डोमेन वाइड एंड फॉरेस्ट वाइड दो पार्ट में इस डोमेन को रेप्लिकेशन के FSMO रोल को कैटेगराइज कर रखा गया है. और इन केस ऑफ डोमेन वाइड 3 different roles you will find. The roles are, first one is related to the PDC emulator and the second one is related to the RID pool manager and the last one is infrastructure master. These roles are part of our, you can consider it as a domain wide. Forest wide में आपको दो रोल देखने को मिलेंगे. The first one is schema master and the second is related to domain naming master. This is the category that you need to define for the FSMO role. FSMO role के लिए आप ये दो कैटेगरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. And our responsibility, we should know about the theoretical part of each and every FSMO role because these roles can also help you in case of domain level of troubleshooting. AD से related कोई problem आती है तो कहीं ना कहीं इन सभी roles में से किसी ना किसी roles का उसमें work रहता है. Means if you have idea about the usage of these roles, then you can easily identify the problem and you can also resolve the issues. So this is the concept that we are trying to understand. This is the agenda to understand about the concept of our FSMO role. Done? Yes, sir. So have you idea about the usage of these roles? No. Okay. And before this, Fine. one question is there. ये इसमें domain replication में how many sites there is there any maximum number of sites that we can connect together? You are talking about the number of additional Number domain of controllers? sites, additional domain controllers. Yes. No, it's not depend. You can consider it as a like as a कितने भी हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. Okay. ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कितने हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे लगाना चाहते हैं. And time will be same. Like अगर 5 भी हैं, for example, वैसे तो नहीं होंगे, तो 5 हैं अगर तो 180 minutes only it will take. नहीं, दिस इज द मैक्सिमम. For साइट की अगर हम बात करें तो ये मैक्सिमम है. 5 मिनट में भी हो सकता है रेप्लिकेट, 10 मिनट में भी हो सकता है, लेकिन 180 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा बिफोर जनरेटिंग अ टिकट फॉर माइक्रोसॉफ्ट. अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से मतलब टिकट जनरेट करना चाहते हैं, यू आर अनेबल टू सिंक्रोनाइज द सर्विसेज, तो आपको एटलीस्ट इतने देर तक वेट करना पड़ेगा. मीन्स अप टू 180 मिनट तक का वेट करना पड़ेगा. उसके बाद ही हम अपनी कोई भी टिकट को जनरेट करेंगे फॉर माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज. क्लियर? Yes. So I'm going to start from the first, like as a additional domain controller पहले हम तैयार कर लेते हैं. एक उसमें फिर जो अपने पास ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस इन द सेंस जो FSMO रोल्स हैं उनका टास्क देखेंगे, एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू transfer the roles. Yes, it's mandatory for us. We also need to know about the method that help us to transfer the role. Okay. Clear? Yes. To establish FSMO role, what are the points that we need to keep in mind? So first of all, let me access our setup.
that I can show you practical of our FSMO roles and replication as well. I have already installed the domain controller. हमें केवल additional domain controller के लिए एक और server लगाने की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम ADC लगाएंगे. This is domain controller which is running properly. I'm going to create one more virtual machine जिसमें हम server 2016 का ही use करेंगे, and after that we'll proceed for the implementation process. Okay. Let me create one more VM, server 2016. Same method we need to use to create virtual machine. I don't want to create right now. We'll install operating system later. यहाँ पे हम server 2016 select कर लेते हैं. Next, ADC. We are planning to set up our additional domain controller. 2 core of processor, and I wanted to provide 4 gig of RAM. NAT पे ही रखना चाहते हैं. Everything is okay. We just need to create VM. Turn on our virtual machine and install operating system. Domain is running properly, but we just need to proceed for the another server machine जिसको हम ADC बनाएंगे, जिसको हम additional domain controller की तरह work करेंगे. Provide the ISO image, which is mandatory. Just need to open setting, go to the CD/DVD, connect, and select the location of our operating system. So you need to choose the ISO image of server 2016. Click open and OK. Restart your virtual machine and proceed for the installation. Now, so what are the steps? What are the points that we need to keep in mind? ये हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हम इंस्टॉलेशन के बाद क्या क्या स्टेप यूज करेंगे. I'm going to write down the entire steps that required to establish our additional domain controller. और हर एक कंपनी में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर 100% रहेगा. साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मीन्स जिनके पास मल्टीपल ब्रांचेस है, दे वांट टू एक्सेस इंटायर ब्रांचेस फ्रॉम रीजनल ऑफिस, दे नीड टू एस्टैब्लिश इंटर साइट. अदरवाइज इंट्रा साइट तो हर एक कंपनी में रहेगा. इंट्रा साइट इट्स मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें रेप्लिकेशन मैनेज करना होता है. काइंड ऑफ बैकअप यू कैन कंसिडर इट. So what I did, in our case, we have already established like one domain controller, which is parent domain controller, जिसको हमने setup किया है cloud.com के नाम से. The another machine we established without OS, without any service. अभी हमें इसको additional domain controller बनाना है. This is our PDC, parent domain controller. And what are the options that you need to keep in mind before creating the application? Configure manual IP address. आपको इसमें manual IP address configure करना है. Make sure कि DNS IP आपने configure कर रखी है, and admin user password, right, plus password, ये आपको collect करके रख लेना है in case of making a replication. Second, this is the machine that we are trying to establish as a ADC, or you can say that it is a BDC, backup domain controller. So what are the points that we need to keep in mind? Configure manual IP address with preferred and alternate DNS. Number second, you need to manage it with the help of convert machine, convert from work group to domain. Convert from work group to domain,
And the second last option, install role, जैसे हमने ADC में इंस्टॉल किया था, role of ADDS, and then again we also need to promote it. Promote role, we need to promote role with existing domain. That's it. These all are the points that we need to keep in mind. Another important point, definitely both machines must be communicate to each other. This is the agenda basically. 3 steps required, which is common steps that we have already discussed in case of converting our machine from work group to domain. And the ADC in case of additional domain controller, these 4 different steps required to establish our environment. Any doubt, any question, please? No. ठीक है, so I think यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं the process, the installation process almost completed. Our responsibility, we just need to install the VMware tools and then perform the task. Additional domain controller, root domain controller is still running properly. Our responsibility to make a changes with our ADC जो additional domain controller है उसमें हम task perform कराने वाले हैं. The first step required to install the VMware tools. Okay, we need to restart system and then proceed for the next steps. Now done, all good. We just need to log in it, and definitely you must need to configure manual password, manual IP address. But before that, let me check the status of our domain controller, yani root domain controller, available in NAT. And let me identify the IP address that we assigned to our parent domain controller. mcpa.cpl cloud.com, go to the properties, IPv4. यहाँ पे हमने जो IP एड्रेस दे रखा है which is 132, right? 192.168.151.52.132. सेकेंड मशीन जो हमने अभी जस्ट तैयार की है, आई एम गोइंग टू असाइन
the type of IP address like same ncpa.cpl, और यहाँ पे भी हम सेम ही IP मीन्स रेंज असाइन करेंगे. IPv4 में जाएंगे एंड 192.168.152.145. ठीक है, कोई भी रैंडम IP एड्रेस आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, बट द IP एड्रेस रेंज मस्ट बी लाइक एज अ रूट डोमेन कंट्रोलर. रूट की IP एड्रेस 192.168.152.132, अल्टरनेट में 8.8.8. सर अभी आपने रेंज बोला है कि रेंज वो वाली होनी चाहिए, एक बार दोबारा बता दीजिए. रेंज इन द सेंस आपका आपने बोला नेटवर्क हाँ 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 जी प्लीज कैरी ऑन. नेटवर्क एड्रेस के अकॉर्डिंग रेंज हमारा सेम होना चाहिए. नेटवर्क एड्रेस के अकॉर्डिंग लाइक एज ए यहाँ तक का 152 तक की रेंज. ओके 152 तक की रेंज सेम होनी चाहिए. बाकी उसके बाद आप कोई दिस इज द होस्ट आईडी, तो होस्ट आईपी में हम कोई भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं. देन ओके करते हैं इसको एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट. कन्वर्ट करने के लिए अगेन वी जस्ट नीड टू ओपन sysdm.cpl. वर्क ग्रुप से हटाएंगे इसको और नाम दे देते हैं ADC, और हमारा जो डोमेन कंट्रोलर नेम है which is cloud.com. I'm going to type the same name. डोमेन कंट्रोलर का नेम हम असाइन करेंगे. ADMINISTRATOR और इसको हम कन्वर्ट करते हैं. ये स्टेप हम पहले भी देख चुके हैं रिलेटेड टू द कन्वर्टिंग मशीन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन, जो हमने विंडोज 10 या विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चेंजेस किए थे, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिड इट. मैंडेटरी टू रीस्टार्ट, ये पहला स्टेप है जब आप एप्लीकेशन तैयार करेंगे. उसके बाद हम प्रमोट करेंगे एंड देन विल प्रोसीड फॉर द concept, we'll proceed for the steps that required to establish our replica. Fine, let me log in with the help of same administrator account and promote, not promote, firstly install the role, then promote the role. Add role and features, next, 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 और यहाँ पे हम ADDS का रोल सेलेक्ट करेंगे. नेक्स्ट 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 एंड इंस्टॉल. हमें सिर्फ इसमें प्रमोशन के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रमोशन के लिए हमें क्या टास्क रिक्वायर्ड होगी, क्या रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, promote this server to domain controller and now we are able to find 3 different options. यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. add a domain controller to an existing forest, add a new domain controller to existing forest, existing domain, existing forest and add a new forest. डिफरेंस क्या है तीनों में? अगर आप लास्ट पे जाते हो इट मींस दैट यू आर ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू डोमेन कंट्रोलर. आप एक पेरेंट डोमेन कंट्रोलर देना चाहते हैं अपने लोकल इन्वायरमेंट को. दैट टाइम वी कैन प्रोसीड विद द लास्ट ऑप्शन. सेकंड यानी मेड वाला जो ऑप्शन है, एड अ न्यू डोमेन इनटू द फॉरेस्ट, इसका मतलब ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यू वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर. अगर आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना चाहते हैं देन सेकंड ऑप्शन. अगर आपको ADC बनाना है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का सेटअप करना चाहते हैं, देन विल प्रोसीड विद द फर्स्ट ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है. इज दैट ओके? Yes, sir. So I'm going to proceed with the first option क्योंकि हम ADC बनाना चाहते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं. So that's why I'm going to proceed with this one. Now click on change. आपको ऑथराइज करना पड़ेगा.
that you are connected with the parent domain controller. आप यहाँ पे user ID password देंगे किसका, parent domain controller का, for approval purpose. Next, we are able to find multiple options here. One is domain name, means DNS, another is GC, and the last one is RODC. So as per the name suggests, let's start with DNS. What is use of DNS? हमने DNS के बारे में बात की थी. बता दीजिए सर, याद नहीं. Okay, DNS, as per the name suggests, the domain naming system, a domain name server, which is related to the name convention. Name convention in the sense like a Converts IP address into name. right, जी. map IP address to name and name to the IP address, vice versa. इसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट इसका ये है कि whenever we set up any kind of printer, ESXi, hypervisor, OpenStack kind of computer, so that time the name resolution come into the picture. IP change हो सकती है DHCP के environment में, but the computer name will change only in manual format. जब तक आप कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाकर चेंजेस नहीं करेंगे, it will not impact to our computer name. Clear? Yes sir. Now, so do you want to make it DNS? अगर आप, because we have already installed one DNS, अपने environment में एक DNS already run कर रहा है, right? The parent domain controller contain the service of our uh, DNS की service already run कर रही है. So now you want to create another DNS, एक और DNS आप environment में establish करना चाहते हैं for the purpose of kind of backup, means backup purpose के लिए एक और DNS आप establish करना चाहते हैं. That time you can make it check mark. By default check mark रहता है because अपना जो purpose है, which is we are trying to make it kind of backup, तो जाहिर सी बात है root domain जब down होगा तो हमारे DNS पे भी impact पड़ेगा. अगर अपने पास मोर देन वन डीएनएस है तो हमारी सारी सर्विसेज जो है एज इट इज रन करती रहेगी, उन सर्विसेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. लाइक अगर आपने कोई होस्टिंग कर रखी है, वेब होस्ट कर रखा है, एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है, तो उन सभी सर्विसेज के ऊपर कोई भी इसका असर नहीं पड़ेगा. इज दैट करेक्ट? हेलो. Now, second one is GC, which is considered as a global catalog. So global catalog सर्वर की जो बात होती है, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ सर्वर बोल सकते हैं, सर्विस बोल सकते हैं. GC, global catalog server responsible to contain, yeah, global catalog server responsible to contain the information about the user's login. यूजर की इंफॉर्मेशन को ये कंटेन करके रखेगा, एंड जब भी कोई यूजर लॉग इन करेगा, सो यूजर आईडी, पासवर्ड एंड ऑल द थिंग्स आर मैनेज बाय द जीसी ग्लोबल कैटलॉग. जब भी मल्टीपल यूजर ट्राई करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने क्लाइंट मशीन को, तो वो जीसी के थ्रू ही मैनेज होता है.
Hello, are you there? Yes, I'm here. Okay. Is that okay about it? Yes, sir. Yeah. ठीक है. What is GC? Can you please help me to understand? Global catalog, it stores the information of users. Okay, and how it work? Uh, it works. I think I have missed that portion. When ठीक है. one TC is So down, then the information of the users can be uh, tallied from this second domain controller in which नहीं नहीं GC is there. वो तो पूरे डोमेन वो तो पूरे एडिशनल डोमेन का टास्क है. वी वांटेड टू नो अबाउट द यूसेज ऑफ आवर जीसी. मींस जीसी बनाने का Hmm. फायदा क्या होता है, व्हाई वी नीड टू ऐड जीसी इन आवर एनवायरनमेंट. ग्लोबल Okay. कैटलॉग का टास्क हम यहाँ पे मींस वी वांटेड टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ ग्लोबल कैटलॉग. So Yes. GC global catalog contain the information. Yes, global catalog contain the information about our users, especially related to the username and password. So whenever multiple users want to log in themselves by at a same time, तो जितने भी यूजर अपने क्लाइंट मशीन को लॉग इन करेंगे ना, उनका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है उसकी इंफॉर्मेशन आपके रूट डोमेन कंट्रोलर के पास रहती है. जीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ग्लोबल कैटलॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उन सभी क्लाइंट मशीन्स को यूजर आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करें. Okay, sir. To provide. ठीक है. सो जीसी आप एक से ज्यादा जीसी रख सकते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ क्लाइंट. अगर अपने पास 30 या 35 के आसपास क्लाइंट है तो एक जीसी में काम चल जाएगा. बट इफ यू हैव मोर देन 100 क्लाइंट, 100 से भी प्लस क्लाइंट है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम इन्वायरमेंट में 2 जीसी होने चाहिए. सिंगल जीसी होगा लॉगिन टाइम में. जो ड्यूरेशन होता है लॉगिन टाइम का, कि जब आप क्लाइंट मशीन पे यूजर आईडी पासवर्ड मेंशन करके एंटर करते हैं, तो उसका लॉगिन टाइम ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा अगर अपने इन्वायरमेंट में सिंगल ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आपने रखा तो है. सर ये यूजर नेम एंड पासवर्ड ये ऑथेंटिकेट करता है जीसी. Exactly. The password, user ID and password is stored by the SAM file of domain controller. बट उस SAM फाइल तक यूजर की इंफॉर्मेशन को मैच कराने के लिए, राइट, SAM फाइल तक यूजर और पासवर्ड को मैच कराने के लिए GC come into the picture. GC can play the vital role in the backend of our client domain conversion, client domain login. Okay. Okay. Fine. Yes, sir. Next. No need to do anything. RODC, read only domain controller. So as for the name suggests, the meaning of RODC, अगर हम RODC की बात करें, so RODC is basically domain controller that you need to establish in those location where you don't want to assign any engineer. ऐसी जियोग्राफिकल लोकेशन में जहाँ पे आप कोई इंजीनियर असाइन नहीं करना चाहते, जहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज आते हैं. सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज इन द सेंस कि जैसे रूरल एरिया कोई है, वहां पे आप अपना डोमेन स्टैब्लिश करना चाहते हैं, दैट टाइम यू कैन प्रोसीड विद आरओडीसी. इससे बेनिफिट क्या होगा कि उस लोकेशन में अगर कोई चेंजेस होता है, उस लोकेशन में कोई चेंजेस होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर पे नहीं पड़ेगा. Okay. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yeah. बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड अबाउट द आरओडीसी, आज की डेट में जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आरओडीसी का, यू कैन से दैट जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी बैंक्स की ब्रांचेस हैं, वो सभी अपने स्मॉल ब्रांचेस में आरओडीसी लगाते हैं. और जो रीजनल ऑफिस होते हैं, जो
आरओज होते हैं वहां पे इस्टेब्लिश किया जाता है रूट डोमेन कंट्रोलर, ताकि कोई भी ब्रांच में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे ऑर्गेनाइजेशन या पूरी ब्रांच पे ना पड़े. So that's why the entire branches are connected to the root RODC, root domain controller. और जो भी changes की required होगी, जो भी changes की requirement होगी, the entire changes managed by the root domain controller only. वो सिर्फ root domain controller से ही manage किया जाएगा. I hope you understand, right? Yes, yes, sir. ठीक है. So no need to do anything. DSRM password you know very well about. जो हम backup में इसका practical देख लेंगे. RODC is the DSRM, directory service restore mode, the usage of directory service restore mode that help us to recover our active directory in case of taking the backup from the system state backup. Taking backup from system state backup. सिस्टम स्टेट, हाँ, 3 तरीके के बैकअप हम देखेंगे. सिस्टम स्टेट, फुल बैकअप एंड बेयर मेटल बैकअप. तो ये जो पार्ट है वो सिस्टम स्टेट का बैकअप है. ठीक है. सिस्टम स्टेट बैकअप की रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिस्टम स्टेट बैकअप रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द सर्विसेज ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी ओनली. वो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप कॉन्फ़िगर करता है. अच्छा, ओके सर. नेक्स्ट नो नीड टू डू एनीथिंग. क्लिक नेक्स्ट और अगेन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे. The purpose to set up additional domain controller, पहले हम FSMO role को complete करेंगे, migrating the role and seizing the role, transferring the role, ये सारा पार्ट कवर करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रबल शूटिंग के पार्ट में हमारी हेल्प करेंगे. सो अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले? We just need to complete the part of our additional domain controller. देखना पड़ेगा, ये कर देते हैं. ठीक है, लेट्स गो. वापस से करते हैं अपनी नॉर्मल वीडियो. Once our domain controller is ready to use, we'll proceed for the next step, like as a understand about the FSMO role. क्योंकि FSMO role कहीं ना कहीं इससे associated है. Our additional domain controller is ready to use. We just need to log in it. Done. The users that you have already created, let me open our root domain controller and identify the number of users and OU. जो भी हमने यहाँ पे number of user and OU create कर रखा है वो चेक करते हैं हम कि क्या वो सक्सेसफुली अपडेट हुए हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में या नहीं. Open Server Manager BZ, go to the Active Directory user and computers. It will give you the information about ABC, एक यूजर हो गया, GCP दूसरा यूजर हो गया, क्लास हो गया, और यहाँ पे हमने GCP and Telnet. ये डेमो यूजर इज ऑल्सो अवेलेबल. क्लास, डेमो, ABC, GCP एंड Telnet, ये सभी यूजर्स हमारे पास अभी अवेलेबल है. बैक टू द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. ओपन टूल्स और यहाँ पे हम एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स. वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड यूजर्स पे जाएंगे. ABC यूजर अवेलेबल है, क्लास यूजर अवेलेबल है, डेमो यूजर अवेलेबल है, GCP यूजर अवेलेबल है, और यहाँ पे Telnet. तो एज इट इज हमारे इन्वायरमेंट को
इसने क्या कर दिया, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को कॉपी कर दिया. Group policies and everything will be replicated, right? Right, right. Okay, sir. आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा. ऑल गुड. नहीं सर. Okay, yeah, all good. ठीक है. नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एफएसएमओ की रोल के बारे में. सो ठीक है, अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट में एफएसएमओ रोल के बारे में बात की, बट वी हैवंट डिस्कस अबाउट द यूसेज ऑफ दीज रोल्स, राइट? Yes. So usage of these roles in the sense like as per the name suggests. पहले स्टार्ट करते हैं डोमेन वाइड से. द मीनिंग ऑफ डोमेन वाइड ऐसे रोल्स, ठीक है ना, those roles are responsible, those roles can perform the task, those roles can perform the task to manage our domain related activity. वो सभी रोल्स आपके एफएसएमओ कंसीडर करते हैं. पीडीसी से स्टार्ट करते हैं. The work of PDC, the work of parent domain controller, basically it is responsible to manage timing and synchronization between our domain controller to the client machine. It is responsible to manage the टाइम सिंक्रोनाइजेशन. एनटीपी काम करता है इसके लिए. व्हाट इज एनटीपी? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, एनटीपी. और एनटीपी का यूसेज क्या है? एनटीपी रिस्पॉन्सिबल किस चीज का है? एनटीपी रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज, व्हाट वी कैन से दैट, synchronize the timing between our domain controller to the client machine. क्लाइंट और डोमेन में ये कम्युनिकेट करने के काम आता है. क्लियर? Yes. नेक्स्ट, RID pool manager. So the name of RID pool manager, as per the name suggests, the work of RID pool manager can help us to you can say that the RID pool manager can contain the information about the SID pool. SID is the secure identity pool. वर्क क्या होता है RID pool का? RID SID को कंटेन करके रखता है और SID की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है to manage our what we can say, to manage our number of users that you are trying to create. Can you hear me? Yes, I can hear you, sir. I'm noting down what you're speaking. ठीक है. So SID pool क्या करता है? SID pool responsible to contain the information about the number of users that you are to create. मतलब ये जितने भी आप यूजर क्रिएट करेंगे, वो सभी यूजर्स आपके किसके लिए रहेंगे एप्लीकेबल? वो सभी यूजर्स, the SID pool can contain the information about your user.
ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट, infrastructure master. The work of infrastructure master can contain the details about the entire infrastructure. जो भी infrastructure में हमने सर्वर्स लगा रखे हैं, RODC कितने हैं, GC कितने हैं, DNS सर्वर कितने हैं, रूट डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, इन सब की डिटेल्स stored by the infrastructure master as per the name suggest. Hmm. स्कीमा मास्टर कैन वर्क लाइक एज अ फॉरेस्ट वाइड, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जो जीपीओ इंप्लीमेंट करते हैं, ग्रुप पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं, वो सभी ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड सर्विसेज स्कीमा मास्टर से मैनेज होता है. और डोमेन नेमिंग मास्टर, एज पर द नेम सजेस्ट, द वर्क ऑफ डोमेन नेमिंग मास्टर कैन अवॉइड द कन्फ्लिक्शन. जो अगर सेम नेम आप मल्टीपल टाइम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, द नेम दैट यू हैव ऑलरेडी यूज adc.cloud.com, और इन्वायरमेंट में कोई दूसरा डोमेन आप बना रहे हैं विद नेम ऑफ adc.com, तो इट विल आइडेंटिफाई एंड ब्लॉक द एक्सेस ऑफ सेम नेम as it is with name of your user, with name of our any kind of like as a ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ग्रुप या कुछ भी हम क्रिएट करते हैं, उन सभी के नेमिंग को आइडेंटिफाई करता है और उनके कन्फ्लिक्शन को रिमूव करता है. मतलब अगर डोमेन नेमिंग ना हो तो हम सेम ही नेम से मल्टीपल यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं या मल्टीपल ओयूज वगैरह को क्रिएट किया जा सकता है. क्लियर? Yes, sir. ये पांचों रोल आपको एक ही जगह पे मिलेंगे. अगर आपने मल्टीपल सर्वर बना रखे हैं, लाइक अभी अपने केस में 2 सर्वर रन कर रहे हैं, एक पीडीसी रन कर रहा है और एक एडीसी रन कर रहा ADC. है, लेकिन ये पांचों रोल पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक रहेंगे. अगर आप 100 ऑफ सर्वर्स लगा दिए हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, आरओडीसी, जीसी, मल्टीपल, ऐसे करके 100 सर्वर्स आपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रखे हैं, फिर भी ये रोल 5 ही रहेंगे. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Yes, sir. These roles are generated by only and only root domain controller, which are not available in our additional domain controller or child domain controller. ये रोल्स आपके चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में नहीं जाएंगे जब तक आप इनको मैनुअल ट्रांसफर नहीं करेंगे. और ये पांचों रोल आपके बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे किसमें? जब आप अपने ADC. रूट डोमेन कंट्रोलर को बनाते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिकल. दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर और हमने यहाँ पे 2 सर्वर लगा रखे हैं. एक हमारा रूट है, दूसरा हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. दिस वन इज आवर रूट डोमेन कंट्रोलर, पेरेंट जिसको बोल रहे हैं हम, और ये हमारा एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. होस्ट नेम आइडेंटिफाई करते हैं इसका, कंप्यूटर का होस्ट नेम. लेट मी चेक. cmd and host name. Let me type the command of host name. कंप्यूटर नेम कुछ भी ऐसे रैंडम आ गया है, win 46030i समथिंग करके. एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का नेम हमने पहले से बदल रखा है, राइट? एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का नाम हमने रख रखा है एडीसी, आई थिंक. लेट मी चेक. होस्ट नेम और एडीसी, दिस इज द डोमेन कंट्रोलर नेम. अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करते हैं टू आइडेंटिफाई द लोकेशन, टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अवर डोमेन कंट्रोलर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करनी होगी. द कमांड इज नेट डम्प क्वेरी fsmo. ठीक है, नेट डम्प क्वेरी fsmo. हिट एंटर. आई थिंक वी आर एबल टू फाइंड ऑल द रोल्स जो अभी हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया है.
schema, Yes, domain yes. naming master, Hmm. PDC, RID pool manager, and infrastructure master. The entire roles are available in root domain controller. Hmm. मतलब ये 5 रोल ही रहेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इन रोल को ट्रांसफर करेंगे. अगेन क्वेश्चन आता है व्हाई वी नीड टू ट्रांसफर दिस रोल. अगेन इट्स अ क्वेश्चन कि क्यों ट्रांसफर करने की रिक्वायरमेंट होगी. सो एज वी नो दैट जो पेरेंट होता है, जो पेरेंट डोमेन कंट्रोलर होता है, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. पेरेंट डोमेन कंट्रोलर यूजर देख रहा है, ग्रुप देख रहा है, ऑब्जेक्ट देख रहा है, साइट देख रहा है, IaaS सर्विस देख रहा है, बैकअप भी देख रहा है. बहुत सारी सर्विसेज आप ऑलरेडी उस पर अप्लाई कर चुके हो. करेक्ट. Hmm. Now you want to release some task, you want to release some burden from our parent domain controller. तो आपने प्लान क्या किया कि कुछ रोल को ट्रांसफर करके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को दे दिया कि भाई आज से योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर अबाउट दीज रोल्स. एक तो सिचुएशन ये होती है. दूसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर आपका पेरेंट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर अभी रन कर रहा है, तो ठीक है, एवरीथिंग विल हैंडल बाय द एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. लेकिन जब पेरेंट डोमेन कंट्रोलर डाउन हुआ ना, तो ये सभी रोल उसी के पास थे. Hmm. मतलब ये कि अगर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर डाउन हो गया तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इन रोल में से किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएगा. Hmm. Yes, sir. अब उस केस में हम इन रोल की कॉपी जनरेट करते हैं. हम इन रोल्स की कॉपी जनरेट करते हैं क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं किया इनके रोल्स के बारे में. अदरवाइज यू फील लाइक कि दीज ऑल आर कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ एडी. एडी में जो भी टास्क हो रहा है कहीं ना कहीं बैकएंड में एफएसएम रोल का टास्क है, एफएसएम रोल अपना वर्क कर रहा है. दैट्स व्हाई वी आर एबल टू परफॉर्म द टास्क लाइक दिस. Hmm. ठीक है. तो Yes, उस sir. केस में जब कॉपी बनाने की बात करते हैं ना, कंसीडर एज ए सीजिंग द रोल. हम क्या करते हैं, अपने रोल को सीज कर देते हैं. हमें क्लियर हो Hmm. गया कि डोमेन कंट्रोलर जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर पेरेंट डोमेन कंट्रोलर था वो डाउन है ड्यू टू एनी रीजन. अभी अपने पास एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है और क्लाइंट को फटाफट से यूजर बना के देना है. अगर आपके रोल्स डाउन है तो आप कोई भी यूजर नहीं बना पाएंगे. तो आपको रोल Hmm. की कॉपी बनानी पड़ेगी, डुप्लीकेट कॉपी, जिसको हम सीजिंग कहते हैं. इज दैट ओके? Yes, sir. चलो, ये तो हो गया अपने पास रोल की इंफॉर्मेशन. ट्रांसफर करने का तरीका, डुप्लीकेट रोल करने बनाने का तरीका भी हम डिस्कस करेंगे. बट अभी हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई हैव अ मच आइडिया अबाउट दीज रोल्स. तो मैं आपको एक छोटी सी डिटेल्स बताता हूँ इन सभी रोल्स को सेपरेट तरीके से. लेट्स स्टार्ट विद पीडीसी emulator. You should know about the usage of PDC emulator role. एक सिंगल लाइन में हम क्या डिफाइन करेंगे इसको? Time synchronization between DC and client machine. अगर हमारा टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होता तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हमारा टाइम सिंक्रोनाइज नहीं हुआ दोनों के बीच में तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वी शुड नो अबाउट इट. Hmm. ये हमारे क्लाइंट्स हुए जो भी विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने सेटअप कर रखे हैं. दीज ऑल आर रनिंग प्रॉपरली. ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी क्योंकि हमारा रूट डोमेन कंट्रोलर अभी लाइव है. ठीक है, दैट कंटेन द पीडीसी. एंड नाउ थिंक अबाउट, अगर ये पीडीसी डाउन होता है, एज वी डिस्कस, रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज टाइम सिंक्रोनाइजेशन. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू मैनेज द टाइम सिंक्रोनाइजेशन. मतलब ये कि अगर यहाँ पे 10:15 AM हो रहा है तो इन सभी क्लाइंट में भी 10:15 AM होना चाहिए. ठीक है ना? 10:15 AM. एक्यूरेट टाइम नहीं भी होता तब भी चल जाएगा. बट टाइम एक तो होता है टाइम, एक होता है टाइम जोन. इज दैट करेक्ट? Yes, sir. जिसमें हम
रीजन के अकॉर्डिंग टाइम सेलेक्ट करते हैं ना, 5:30 आई समथिंग करके जो रहता है, इंडिया, कोलकाता, दिल्ली वगैरह का देता है, राइट। और एक होता है अपने पास AM PM, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पीडीसी एमुलेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि इन सभी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। थिंक अबाउट, अगर ये टाइमिंग हमारे सर्वर की है और गलती से हमारे क्लाइंट की टाइमिंग जो है AM की बजाय PM हो गई, ठीक है, सो इसका इम्पैक्ट देखिए, आपकी जीपीओ काम करना बंद कर देगी, विल नॉट अप्लाई, ठीक है, पहला। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, अगर आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, डोमेन्स पे, और ये क्लाइंट उस एप्लीकेशन का एक्सेस करते हैं, एप्लीकेशन विल नॉट एक्सेसिबल। नंबर थर्ड, password will not synchronize with user। ये प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाएगी अगर आपका पीडीसी डाउन हुआ तो। इज दैट फाइन? यस सर। पासवर्ड विल नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब ये है, पासवर्ड विल नॉट सिंक्रोनाइज का मतलब ये सिंपल सा है कि अगर इस यूजर को हमने एबीसी से लॉगिन किया है, ठीक है, और यहाँ पे एबीसी का पासवर्ड आपने चेंज कर दिया, ये नया पासवर्ड जो आपने चेंज किया है ना, वो सिंक्रोनाइज नहीं होगा आपके क्लाइंट पे, एंड क्लाइंट विल अनेबल टू लॉग इन देयर सेल्फ। क्लाइंट हमारा अपने आप को लॉग इन नहीं कर पाएगा। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी। हाँ जी, समझ में आ रही है। पर सर अगर जो दूसरा वो एडीसी जो है, इफ दैट इज इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन, साइट ही अलग है, तो फिर उसका वो टाइम जोन क्या रहेगा? फिर वो तो उसी का टाइम जोन रहेगा ना जहाँ पे ग्रेट, नहीं, ग्रेट। देन NTP come into the picture. Then NTP come into the picture. What is NTP? Network Time Protocol. Right. Network Time Protocol. अब ये नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल क्या करता है ना, ये बेस्ड ऑन ISP चलता है, तो हमें उसकी हेडेक ही नहीं है। बेस्ड ऑन ISP, बेस्ड ऑन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, हमें सिर्फ NTP की सर्विस को एक्टिवेट कर देना है बस। Okay. अब बंदा यूएस में बैठा है, दुबई में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, इंडिया में बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमसे उससे। हमने NTP कॉन्फ़िगर कर दिया, डोमेन हमारा रीजनल ऑफिस इंडिया में है, दिल्ली में है, यूएस का बंदा उसको उसकी टाइमिंग मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया का बंदा उसको उसकी टाइमिंग मिलेगी, दुबई के बंदे को उसकी अपनी टाइमिंग मिलेगी। ये NTP सर्वर जो है ना, यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा microsoft.time.com। हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रोसॉफ्ट को दे दी, और ये ग्लोबल टाइमिंग Microsoft.time.com ये क्या है सर? ये Online ग्लोबल टाइम मैनेजमेंट है, ग्लोबल टाइम मैनेजमेंट का डोमेन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लोकेशन के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना। मतलब जब आप NTP कॉन्फ़िगर करोगे ना, तो वहां पे बोलेगा कि आपका सर्वर क्या है, आपका NTP सर्वर क्या है, ठीक है। अगर आप केवल इंडिया में हैं तो आप अपने सर्वर की IP दे दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं हमारी तो कुछ ब्रांचेस बाहर भी हैं, दुबई, ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में है, देन यू कैन प्रोसीड विद microsoft.time.com। नहीं क्लियर हुआ? यस सर, नहीं हो गया क्लियर। जब हमें बिल्कुल 100% क्लियर है कि हमारी जितनी भी ब्रांचेस है ना वो इंडिया में है, तो आई डोंट थिंक कि इंडिया के लोकेशन में टाइमिंग का कोई फर्क पड़ता है। हाँ, आई थिंक कोई, हाँ है ना, कोई भी लोकेशन में टाइमिंग नहीं क्लियर होती, डिफरेंट नहीं होती। बट जब हम कंट्री चेंज करते हैं, रीजन चेंज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का ही क्यों ना फर्क पड़े, बट फर्क पड़ेगा। इज दैट करेक्ट? 2.5 घंटे दुबई, 9 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, 8 आवर्स अफ्रीका पड़ता है, 12 आवर्स के आसपास का गैप रहता है अमेरिका में, करेक्ट?
तो Microsoft.time.com इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ये जिस कंट्री का ISP होगा वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर देगा. नाउ रिजॉल्व योर क्वेश्चन. सही है, Yes, क्लियर yes. हो गया. Hmm. अगले पॉइंट पे जाते हैं. अगला पॉइंट है अपने पास, वो है RID पूल मैनेजर. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट. कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि अगर हमारा RID पूल मैनेजर डाउन है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. वी शुड नो अबाउट RID पूल मैनेजर. और RID पूल मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही यूनिक है. दिस इज आवर डोमेन कंट्रोलर. किस नाम से बनाया हमने? cloud.com से बनाया. और यहाँ पे हमने एक दूसरा डोमेन कंट्रोलर बनाया. किस नाम से? adc.cloud.com. ठीक है, अभी दो को लेकर चलते हैं. एक और ADC लगा देते हैं ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो सके. adc2.cloud.com. ठीक है, ये हमने 3 बना दिए. अभी हम क्लाइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल डोमेन की बात कर रहे हैं. ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सभी आपस में जुड़े हुए हैं. एंड नाउ टॉक अबाउट RID पूल. RID क्या होता है? रिलेटिव ID. बेसिकली इसको बोला जाता है रिलेटिव आइडेंटिटी ऑफ आवर यूजर. और ये कंटेन करता है SID ऑफ यूजर. SID ऑफ एवरी यूजर. SID क्या होता है? SID, secure identity. सिक्योर आइडेंटिटी. द मीनिंग ऑफ सिक्योर आइडेंटिटी इज कि आप जब भी कोई यूजर बनाते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे ABC यूजर बनाया, ये हर जगह पे मिलेगा ABC यूजर, राइट. जब भी आप ABC यूजर बनाते हैं, XYZ यूजर, कोई भी यूजर बनाते हैं, SID क्या करता है ना, आपको कुछ डिजिट में, आई थिंक 4 डिजिट में है. 15,000 2 तो 4 1500 5 डिजिट में आपको एक ID असाइन करता है. ठीक है, Okay. 5 डिजिट में हो सकता है 1 0 2 3 4 2 2 4 1 5. ये ID है आपके यूजर की. इसको मिल गई 201512. सॉरी, 5 डिजिट में जाएगी. ये इसकी ID हो गई. दोनों यूजर की एक ID असाइन हो गई रैंडम. वी डोंट नो अबाउट कि क्या मिलेगी हमें. हम ऐसे प्रेडिक्ट कर भी नहीं सकते कि हमें क्या मिलेगी. ये रैंडम उठा के भेजता है. अब ये SID के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. RID पूल जो है ना, ये जो SID है वो RID पूल मैनेजर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाती है. नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज यूज? इसका यूज ये है कि अगर आप ये यूजर डिलीट भी कर देंगे ना, अगर आपने ABC यूजर डिलीट किया, ठीक है, बंदा कंपनी छोड़ के चला गया और आपने यूजर उसकी डिलीट कर दिया, 3 महीने का इंतजार किया, 90 डेज का टाइम आपने कंज्यूम किया, उसके बाद आपने यूजर की ID डिलीट कर दी. आप यूजर का नेम डिलीट कर दिया, पासवर्ड डिलीट कर दिया, प्रोफाइल डिलीट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये ID सिर्फ एक बार जनरेट होती है. ये आपके सिस्टम में तब तक रहेगी जब तक आप सिस्टम को पूरी तरीके से क्लीन नहीं कर देते. क्लियर हुआ? Yes, sir. मतलब ये कि जितने भी यूजर्स क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक SID कंज्यूम कर लेते हैं इमीडिएटली. और वो SID कभी भी रीड यूज नहीं होती, वो परमानेंट के लिए यूटिलाइज हो जाती है. तो वो ये जो नंबर SID है 10234, ये वापस से किसी को अलॉट नहीं होगी. नेवर, कभी कोई भी नया ये यूजर दूसरी तो उसको नहीं. नहीं, कभी भी इसको असाइन नहीं होगा. इवन अगर आपने उस यूजर को डिलीट भी कर दिया, तब भी आपने कंज्यूम कर लिया तो कंज्यूम कर लिया, उसका यूसेज नहीं है अब दोबारा. ओके. ठीक है ना. यस. एक पॉइंट और इसमें ऐड करना चाहते हैं. अपने पास जो SID की ना एक लिमिट डिसाइड की गई है. डिफॉल्ट SID बाय डिफॉल्ट हर एक सर्वर में केवल 500 SID रहती है डिफॉल्ट. और RID पूल में मैक्सिमम मतलब. RID पूल में 500 यूजर के लिए ID अवेलेबल रहती है.
और मैक्सिमम SID जो रहती है उसके लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट को, 15,000 रहती है। क्लियर? यस सर। मतलब बिल्कुल सिंपल सा इसका है कि पहला जो यूजर रहेगा उसकी आईडी 02499 की रहेगी। उसके बाद दूसरे डोमेन की यानी इसकी, ये कहां से स्टार्ट होगा, 500 to 999। फिर उसके बाद तीसरा डोमेन कहां से स्टार्ट करेगा, 1000 to 1499। इज दैट करेक्ट? यस सर। 500 यहां पे मिल गए, 500 यहाँ पे मिल गए और 500 यहाँ पे मिल गए। ठीक है यस सर। ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्लाइंट को एक सर्वर में 500 से ज्यादा यूजर बनाने हैं, क्या नहीं बना पाएगा? बिल्कुल क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 15,000 है। ठीक है बट कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। एक डोमेन कंट्रोलर में ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 50 यूजर ही क्रिएट करेगा। ठीक है ना? बात ये नहीं कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, बात ये है कि अगर ये सर्वर डाउन हुआ तो इतने बंदे, इतने एम्प्लॉय हमारे, उनको इम्पैक्ट कोई काम ही नहीं रहेगा, इम्पैक्ट हो गया, उनको कोई टास्क ही नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई ज्यादा बर्डन नहीं देते, 50 यूजर रखते हैं और ये भी कंज्यूम हो जाता है। आपने कंपनी स्टैब्लिश की अपनी 2010 में एंड नाउ इज 2023। अब इतने दिन में इतने सारे यूजर्स क्रिएट हुए क्योंकि आपका 2010 से 2023 के तक की सारी SID आपके पास होनी चाहिए। ऑडिट के टाइम पे विद इन मिनट आप सारी डिटेल निकाल पाओगे कि आपने कौन सा यूजर कब बनाया था, कौन सा यूजर कब डिलीट किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यस सर। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द SID। यस सर। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात कर रहे हैं, तो इनको हम करते हैं ओके ओके, इसको भी ओके कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द number of user, number of devices, number of servers that you implemented in your company। ठीक है यहाँ तक? यस सर। ओके ग्रेट। लेट्स टॉक अबाउट द स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। तो ये क्या करता है, GPO जो हम इंप्लीमेंट करते हैं, ग्रुप पॉलिसी जो इंप्लीमेंट करते हैं, वो स्कीमा मास्टर के थ्रू होता है। जो नेमिंग सर्विसेज होती है, नेमिंग सर्विसेज इन द सेंस किसी भी यूजर का नेम आप रिपीट नहीं करेंगे, which is considered as which is managed by the domain naming master। प्लीज कंफर्म अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई तो। हाँ जी, क्लियर है अभी तक तो। ओके, ऑल गुड अभी तक यहाँ पे, या कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, क्लियर है सब कुछ ही। मैं, चलो ठीक है, एक प्रैक्टिकल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आपके पास कंटेंट हो प्रैक्टिस के लिए। हम यहाँ पे जो रोल्स देखे थे, रोल्स कहाँ पे अवेलेबल है हमारे सभी रोल्स? PDC डोमेन, पेरेंट डोमेन कंट्रोलर में, राइट? अब पेरेंट डोमेन कंट्रोलर से हम हटाना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू पुट द एंटायर रोल्स, या फिर डिवाइड करना चाहते हैं बर्डन थोड़ा कम करने के लिए। PDC को हटा देते हैं, RID को हटा देते हैं और डोमेन नेमिंग मास्टर को हटा देते हैं। इन 3 रोल को उठा करके हम अपने ADC पे ले जाना चाहते हैं, राइट? यस सर। चलो मैं आपको पहले मेंशन कर देता हूं यहाँ पे नाम, जो कमांड हम इस्तेमाल करने वाले हैं। एजेंडा क्या है हमारा? ट्रांसफर FSMO role using CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम FSMO रोल को ट्रांसफर करना चाहते हैं। दिस इज आवर रो डोमेन, द अनदर इज एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ADC। ठीक है ना? यस। बाय डिफॉल्ट सारे रोल्स यहीं पे हैं, तो जाहिर सी बात है ADC है तो कम्युनिकेशन 24/7 होगा इनका। अब आपको रोल्स को ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ तक। कमांड कितनी यूज हो रही है सब डिस्कस कर लेते हैं। पहली कमांड है नेट डम क्वेरी FSMO। काम क्या है इसका?
To fetch out all the roles that are there in root domain. To check the location of role, कहीं पे भी हो सकता है ना, we don't know about. Okay. ये पहली कमांड हो गई. हो सकता है एडीसी पे हो, किसी ने ट्रांसफर कर दिया हो, तो हमें तो लोकेशन चेक करनी है ना कि एक्चुअल में ये 5 रोल या 2 रोल 3 रोल यहाँ पे अवेलेबल है. दूसरी कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे ntds, एक साथ लिखेंगे util, ntds util. ये ओपन मेंटेनेंस मोड टू ट्रांसफर रोल. नंबर नेक्स्ट, अगला रोल क्या है? सिंपल से एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे रोल्स. नंबर 4 पे दूसरी कमांड आएगी कनेक्शंस. ठीक है. नंबर 5 पे कमांड आएगी कनेक्ट टू सर्वर स्पेस सर्वर नेम. नंबर 6 हो गया, क्विट करेंगे. और नंबर 7 पे कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्रांसफर स्पेस fsmo रोल नेम. ये कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे टू मैनेज द रोल, ट्रांसफरिंग द रोल फ्रॉम वन डोमेन टू अनदर डोमेन. 7 डिफरेंट कमांड्स हैं, बहुत ही आसान है, बस हमारे पास सेटअप होना चाहिए एंड वी आर एबल टू अचीव द टास्क. क्लियर? Yes. आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल. और दूसरी चीज, आप इसको कहीं पे एग्जीक्यूट करो, यहाँ पे बैठ के आपको एडीसी पे रोल ट्रांसफर करना है तब भी हो जाएगा, एडीसी पे बैठ करके अपने पास रोल लाना है तब भी हो जाएगा. ये कमांड हमारी हर जगह पे चलती है जहाँ पे भी डोमेन चलेगा. डोमेन सर ये एडीसी पे आपने ये नेटडॉम क्वेरी ये वाली कमांड रन करी है तो वो सारे रोल्स दिखा रहा है जबकि ट्रांसफर तो नहीं हुए हैं. नहीं, मैंने एडीसी पे ट्रांसफर रोल एग्जीक्यूट किया, इसने मुझे बताया कि अभी आपके सारे रोल वहीं पे हैं, पीडीसी पे हैं. अगर आपको ट्रांसफर करना है तो ये कमांड चलाइए. अच्छा दिखाने हमने पर हमने पीडीसी ट्रांसफर नहीं किया. लोकेशन कैसे आपने देखी? लोकेशन मुझे समझ नहीं आ रही, लोकेशन कैसे दिखा रहा है ये विन ये होस्ट नेम है. अच्छा ओके, होस्ट ना? नेम, इट इज तो शोइंग द होस्ट नेम इन फ्रंट ऑफ ऑल द हाँ, रोल्स. हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंप्यूटर के नेम से ही तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पीडीसी है, ये सॉरी ये पेरेंट डोमेन है, ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है. हाँ जी. अब हम चाहते हैं कि इसमें से 2-3 रोल उठा करके अपने पास रख लें. बर्डन पड़ रहा है हमारे रोल डोमेन कंट्रोलर के ठीक ऊपर. है. सो कमांड क्या है? ntds util. चलिए ntds util हमने एग्जीक्यूट की. ntds util. ठीक है. अब आ गए आप मेंटेनेंस मोड, इसको मेंटेनेंस मोड बोला जाता है. हाँ. दूसरी कमांड बोलो रोल्स. दूसरी कमांड है हमारी रोल्स. एग्जीक्यूट किया, अब आ गए आप fsmo मेंटेनेंस, और आपने बता दिया कमांड को कि नहीं हम रोल्स के साथ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि ntds के बाद बहुत सारे टास्क होंगे. तीसरा है कनेक्शंस. मैंडेटरी है, कनेक्शन के बिना कुछ होगा नहीं. सर्वर कनेक्शन, तो कनेक्ट टू सर्वर का नाम क्या है? adc.cloud.com, जहां पे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं. यही है हमारा कंप्यूटर नेम. एंटर. सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द adc.something जो लोकल क्रेडेंशियल था, और आप कर दीजिए यहाँ पे क्विट करने के बाद. कमांड्स हैं सर, ये हम पीडीसी पे नहीं रन कर सकते, वहां के सीएमडी में कहीं पे भी सीएमडी पे रन करो, कहीं पे भी सर्वर आपका जुड़ा होना चाहिए. बस एडीसी पे रन करो, पीडीसी पे रन करो, या जो भी सर्वर्स हैं कहीं पे भी रन कर सकते हैं. ठीक है सर. टू एडीसी एफएसओ में मेंटेनेंस में आ गए. अब आपको करना है केवल ट्रांसफर. चलो पीडीसी पहले करके देख लेते हैं. एंटर.
ये आ गया। अभी इसको यस कर दो, ट्रांसफर हो गया रोल आपका। एक रोल आपने फटाफट से ट्रांसफर कर दिया। चलो दूसरी सीएमडी ओपन करते हैं ताकि हम प्रैक्टिकली बता सके कि नहीं ये रोल्स आपका मूव हो चुका है। कमांड क्या है? netdom query FSM में। पीडीसी कहाँ पे है? अच्छा अच्छा, आ गया है डीसी में, PDC ADC में आ गया, है ना? pdc.cloud.com। एज इट इज आपको सिर्फ और सिर्फ कमांड चलानी है। यहाँ पे अगली कमांड ट्रांसफर, जैसे पीडीसी लिखा था वैसे यहाँ पे दूसरा नेम लिख देंगे, RID मास्टर, ट्रांसफर मास्टर, RID मास्टर। अब इसने किसको ट्रांसफर किया? RID अब दो रोल ट्रांसफर हो गए। ठीक है ठीक है। आपको सिर्फ नेम मेंशन करना है और उसके पहले ट्रांसफर लिखना है, आपके रोल फटाफट से ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है सर। गॉट इट? हाँ जी। These all are the practical are really important for every system administrator. तो उम्मीद है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है ठीक है, तो अभी तो हमने केवल बेसिक से सर्विसेज इस्तेमाल की to transfer the role, to transfer the role we usage CLI, we usage CLI, but we can also transfer through the GUI। हम अपने GUI के थ्रू भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा ओके। वो सर्वर मैनेजर में टूल्स पे जाके वहां से कुछ कोई ऑप्शन पिक करना है। हाँ वो स्टेप्स है, वो हम यूज करेंगे, बट धीरे धीरे पार्टीज को कवर करेंगे। हाँ वो तो GUI अभी के मतलब लिए ग्राफिक के थ्रू उसमें आसान रहता है, वैसे आसान CLI रहता है। GUI में क्या है, आपको हर एक रोल के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, क्लियर है। ठीक है, तो आप यहाँ तक प्रैक्टिकल कंप्लीट करो एंड विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। एंड दिस वीक आई ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम, मैंने रिक्वेस्ट की है। सो अगर वो मुझे ऑथराइज कर देंगे तो आई गिव यू